Hello everyone. Very good evening. I hope everyone is doing great. So today we have our third live session regarding perception. हमारा थोड़ा सा कल रह गया था perception में. First we will complete this and we'll move to the next block, number 4 I think, and it's thinking and language. So first we will complete this perception part and then we will move to the next section for thinking and language. So I hope those who have attended the yesterday's class, they all are here right now. और सबने रिवाइज अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है. अदरवाइज you will face lots of difficulties in understand the further topics for perception as well as the thinking and language. So as I have already suggested you all, you need to revise each and everything before the upcoming classes. So now before we start, I would like to ask you, am I audible to all? Is anybody facing any kind of audio issues? Audible, sir. Audible, right? Okay. So now we have 13 people in this session. So we'll start. So yesterday we have completed some perception topics. I will recap. So previous this, we have understood the perception, the meaning, and the laws of the perception, how we make perception for regarding the world around us, कैसे हम perception बनाते हैं, and कैसे types होते हैं, क्या process होता है perception का, perception को क्या क्या चीजें affect करती है. And yesterday we also studied about the perception of depth and distance, कि डेप्थ को लेके और डिस्टेंस को लेके हमारा परसेप्शन कैसे चेंज होता है, कैसे वो क्रिएट होता है. जैसे इसमें एग्जांपल्स थे रिलेटिव साइज, texture gradient, aerial perspective, linear perspective, interposition, accommodation. I hope जिसने कल क्लास 10 की थी उसको ये सब पता होगा कि ये सब क्या है. रिलेटिव साइज में मैंने बताया था कि दिस वाज एन एग्जांपल फॉर द रिलेटिव साइज, कि अगर सेम साइज है सब पैराशूट्स का, लेकिन ये वाला जो है वो सबसे छोटा दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स इससे मैं क्या आइडिया लगाऊंगा, इससे ये आइडिया लगाऊंगा कि जो ये पैराशूट है ये सबसे लास्ट में है, ये जो इसका जो डिस्टेंस है वो सबसे ज्यादा है कहाँ से, मेरी आइज से. सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग रिलेटिव साइज. तो कल हमने पढ़ा था डेप्थ एंड डिस्टेंस, कि डेप्थ एंड डिस्टेंस को हम कैसे जानते हैं, कैसे परसेप्शन बनाते हैं उनका. And today we have moment perception, then size perception, then errors in perception and types of illusion. तो इसको मैं कवर कर देता हूँ जल्दी से, फिर then we will move to the next topic which is thinking and language. So in moment perception, as we have studied about the depth and distance perception, आज क्या है movement perception. पहले क्या था, लास्ट वाले टॉपिक में क्या था कि जो ऑब्जेक्ट था जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे थे, जिसके रिगार्डिंग हम परसेप्शन बना रहे थे, those object was not moving, are stationary. But today in this topic, मूवमेंट परसेप्शन, इसमें क्या करेगा, ऑब्जेक्ट क्या है, मूव करेगा, या ऐसा अपीयर होगा हमें कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है. तो इसमें परसेप्शन कैसे कैसे बनते हैं और हम अलग परसेप्शन बनाते हैं मूवमेंट को लेके, ये इसमें बताया गया है. So I will start from the beginning and it says, how do we know that if car is moving toward or moving away from us? ये हमें कैसे पता चलता है ये कार हमारे पास आ रही है या जा रही है? तो ये हम उसकी मूवमेंट से पता करते हैं कि वो हमारी तरफ आ रही है या हमसे दूर जा रही है. Movement perception is our ability to judge the direction and speed of the moving object. तो मूविंग परसेप्शन क्या है, ये इसकी डेफिनेशन है मूवमेंट परसेप्शन की. ये हमारी एबिलिटी है जिससे हम जज करते हैं, डायरेक्शन जज करते हैं, और स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, जो स्पीड होती है मूविंग ऑब्जेक्ट की, उसको हम जज करते हैं किसके द्वारा, मूवमेंट परसेप्शन के अकॉर्डिंग. Then it says psychologists have tried to answer the questions on movement perception using following four factors. We have some factors over here. First is retinal motion, and other one is motion after effect, and third one is induced movement, and the fourth one is apparent movement or stroboscopic
stroboscopic motion. So we have four factors over here which help us in order to understand the movement perception. So first we have retinal motion. इसमें क्या होता है? When an object moves, its image or retinal also moves. ये कह रहा है कि जब ऑब्जेक्ट मूव करता है, अगर आप देखोगे कभी भी जब हम ऑब्जेक्ट हमारी आइज के सामने होगा और वो मूव करेगा, तो जो हमारी इमेज बनेगी आइज के ऊपर वो भी मूव करेगी, राइट? कि जो हमारी इमेज बन रही है आइज के ऊपर, रेटिना जिसे हम बोलते हैं, जहां पे हमारी इमेज बनती है, वो भी मूव करेगी ऑब्जेक्ट के साथ ही. Then it says this motion of the retinal image is detected by spatial visual neurons which are sensitive to change in motion and directive. तो ये हमें पता चल जाता है, हमारे जो नर्व्स न्यूरॉन्स होते हैं माइंड में, उससे हमें ये पता चल जाता है कि द ऑब्जेक्ट इज मूविंग. दैट इज द ओनली थिंग इन दिस रेटिनल मोशन. तो इसमें बताने के लिए ऐसा कुछ है नहीं, मैं मतलब ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ ज्यादा, लेकिन मूवमेंट परसेप्शन में या इन सब चीजों में ज्यादा कुछ समझाने के लिए है नहीं. मूवमेंट परसेप्शन इज द ओनली थिंग वेयर वी set our perception regarding the motion of a object, कि हम कैसे पता कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है. तो वैसे सोचने के लिए तो बहुत इजी है, बट वी कैन डील दिस टॉपिक इन डीप इन द डिटेल स्टडीज. तो ये नेक्स्ट में बताता है कि मोशन आफ्टर इफेक्ट. मोशन आफ्टर इफेक्ट क्या होगा, इस नाम से ही पता चल जाता है. मोशन आफ्टर इफेक्ट मतलब मोशन खत्म हो गया है, लेकिन हमें फिर भी लग रहा है कि वो मोशन में है. इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल अगर किसी ने साइंस पढ़ी हो तो उसमें होता है कि let me figure out this motion of a stationary object. तुमने अगर पढ़ा होगा कि जब जैसे कोई बॉडी मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है और एकदम से सडनली अगर वो रुक जाता है तो हमारी बॉडी फिर भी मोशन में रहती है. अगर मैं एग्जांपल दूं, सपोज वी आर सिटिंग इन अ बस एंड द बस इज मूविंग इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड सडनली द ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक ऑन द बस, तो हमारी बॉडी क्या करती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है. इट अपीयर्स द बॉडी इन अ मोशन इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो ये सेम ही बात है. इसे अगर मैं पढ़ के बताऊं, इफ यू फिक्सेट योर गेज ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट फॉर सम टाइम, अगर ये कह रहा है कि इफ यू फिक्सेट, अगर हम मूविंग ऑब्जेक्ट पे अगर हम हैं फॉर फ्यू सेकंड्स टू मिनट्स, देन मूव योर गेज टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, then the stationary object will perceived as a moving in the opposite direction. तो ये क्या करेगा, मूविंग करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में. या फिर मैं इसके अभी एक वीडियो दिखाऊंगा आपको, उसमें बहुत अच्छे से इन्होंने बताया हुआ है मूवमेंट परसेप्शन कैसे होता है. एक बार मैं इसको यहाँ से बस एक्सप्लेन कर देता हूँ. वीडियो अगर आप देखोगे इसमें वो बहुत अच्छे से एग्जांपल दिया हुआ है, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा. द नेक्स्ट थिंग इज इंड्यूस्ड मूवमेंट. व्हेन अ स्मॉलर स्टेशनरी बॉडी इज सराउंडेड बाय अ लार्ज मूविंग बॉडी, देन स्मॉलर बॉडी इज परसीव्ड टू मूव इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द लार्ज बॉडी. इसका एग्जाम्पल उन्होंने दिया हुआ है, जैसे जब मून होता है, स्काई में जब मून होता है और जब बादल इसके आगे से निकलते हैं, तो हमें क्या लगता है, हमें ऐसा अपीयर होता है जो मून है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है. हमें ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है. जब बादल अगर राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमें ऐसा अपीयर होगा कि मून जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है. सो दैट कम्स अंडर इंड्यूस्ड मूवमेंट. एंड द नेक्स्ट वन इज एपरेंट मूवमेंट और स्ट्रोबोस्कोपिक मूवमेंट. इसमें क्या होता है कि मेरे पास अगर ये 4 पेज हैं और मैंने अलग अलग यहाँ पे डॉट बना दिए हैं 4, तो इनको अगर मैं स्पीडली अगर मूव करूंगा तो इट अपीयर्स लाइक दिस. अगर आपने वो नोटबुक देखी होगी जिसमें हम फोटोज बनाते हैं, हर पेज पे एक फोटोज बनाते हैं और स्पीडली उसको मूव करते हैं, तो एक पूरा एक मोशन दिखाई देता है. मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ, उसमें बहुत अच्छे से क्लियर किया गया है मोशन परसेप्शन.
इसमें भी मैं बताना चाहूंगा, इसमें क्या हो रहा है कि लाइट सिर्फ ऑफ हो रही है, एक लाइट ऑफ हो रही है, जैसे हम देखते हैं कि बफर भी करता है, जब जैसे यूट्यूब बफर करता है या हम कोई ब्राउजर यूज करते हैं, ऑन द सेम टाइम वो ऐसे ही मूव करता है, हम उसमें कुछ भी नहीं होता, उसमें सिर्फ लाइट ऑफ होगी, ये वाली एक लाइट ऑफ होगी और हमें अपीयर करेगा कि ये एक ही यहाँ पे मोशन में चल रही है, ऐसा हमें लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सो नाउ इट सेज अबाउट द इल्यूजन हमारा बाद में आएगा, तो मैं उसको बाद में एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ तक समझ में आया मूवमेंट परसेप्शन क्या होता है? सो मूवमेंट परसेप्शन बेसिकली परसेप्शन होता है हमारा, परसेप्शन परसेप्शन मतलब धारणा, जैसे मैंने कल बताया था, जिसने प्रीवियस क्लासेस अटेंड की होंगी उनको पता होगा। परसेप्शन हम कैसे सोचते हैं कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूवमेंट में है, तो उसके कुछ कुछ फैक्टर हैं कि हमें ऐसा अपीयर होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे रेटिनल मोशन में मैंने बताया, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट हमारी आंखों के सामने से गया तो हमें पता चल जाता है कि वो मोशन में है, हमारी रेटिनल इमेज भी मोशन में ही अपीयर होती है। द नेक्स्ट वन इज मोशन आफ्टर इफेक्ट, जो मोशन आफ्टर इफेक्ट होता है। तो थर्ड वन बताया इंड्यूस्ड मोशन, कि हमें ऐसा अपीयर होता है कि जो मून है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, अगेन हमें ऐसा लगता है। एंड द लास्ट वन इज अपरेंट मोशन, और यू कैन से स्ट्रोबोस्कोपिक मोशन, जिसमें अलग अलग पेजेस पे हम अलग अलग डायग्राम बनाते हैं और उसको हम अगर स्पीडली मूव करते हैं तो इट अपीयर्स इन अ मोशन। तो ये हमारे कुछ कुछ परसेप्शन थे मूवमेंट को लेके। इसके बाद आता है नेक्स्ट वन इज साइज परसेप्शन, कि हम साइज को कैसे परसेप्ट करते हैं, परसेप्शन साइज को कैसे पता करते हैं अपने एबिलिटी के अकॉर्डिंग। सो इन दिस सेक्शन इट सेज we will discuss those mechanisms that are involved in judging the size of the stimuli. Our ability to judge the size of the stimuli correctly, even with the change in the distance, has been explained using these three hypotheses: the size distance invariance hypothesis, familiar size hypothesis, and the direct perception hypothesis. ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें बस ये बताया कि हम साइज कैसे निकालते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसको कैसे परसेप्शन में निकालते हैं। तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल इसमें दिया हुआ साइज डिस्टेंस इनवेरिएंस हाइपोथेसिस। तो ये क्या बताता है, ये हमें सिर्फ ये एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था किलपैट्रिक एंड इटलसन, 1953 में उन्होंने बताया था। द बेसिक प्रेमिसेस ऑफ दिस हाइपोथेसिस इज दैट द परसीव्ड साइज ऑफ द स्टिमुलस इज प्रोपोर्शनल टू द परसीव्ड डिस्टेंस। तो ये बताता है कि परसीव्ड और परसीव्ड का मतलब हो गया वही परसीव्ड डिस्टेंस जो हमें लग रहा है। अगेन ये एग्जैक्ट नहीं होगा, परसीव्ड मतलब परसेप्शन कैसे ही ड्राइव हुआ है ये वर्ड परसीव्ड। तो परसीव्ड डिस्टेंस मतलब जो हमारा डिस्टेंस का परसेप्शन है उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। एंड इट सेज if information about the distance is available, then the size of the stimuli is interpreted based on retinal image। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, अगर हमें डिस्टेंस अगर पता होता है, साइज डिस्टेंस पता होता है किसी ऑब्जेक्ट का, तो हम अपने जो रेटिनल इमेज के जो एंगल होते हैं, जैसे मैंने कल बताया था, अगर ये लेफ्ट आई है और ये राइट आई है और हम कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा, लेफ्ट और राइट आई के बीच में जो एंगल बनेगा, उससे हम ये सब यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। और यहाँ पे इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, S बाई डी इज इक्वल टू एफ, दैट इज अ थीटा साइन, एंड S यहाँ पे है परसीव्ड साइज, परसीव्ड डिस्टेंस एंड विजुअल एंगल्स। तो अगर हमारे पास ये एंगल होगा आइज वाला, और अगर हमारे पास डिस्टेंस होगा, परसीव्ड डिस्टेंस होगा किसी का भी, तो हम क्या निकाल सकते हैं, परसीव्ड साइज कैलकुलेट कर सकते हैं उस बॉडी का। ठीक है, तो परसीव्ड साइज डिस्टेंस मतलब जो हमें लग रहा है जो उसका डिस्टेंस है, और उसी के अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे उसका साइज जो हमें लगना चाहिए उसी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब सेकंड इसमें आ जाता है फैमिलियर साइज एंड familiar size theory or Q. So this Q is used to judge not only the size but also the distance and the depth of the stimuli. We know the visual angle for a stimuli decreases with the decrease in the distance. तो ये क्या कह रहा है, विजुअल एंगल क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है जब भी क्या डिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। ये मैंने कल बताया था, अगर जिसने पढ़ा होगा अच्छे से, कन्वर्जेंस एंगल जो हमने पढ़ा था कल। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे अगर दूर है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट अगर पास में है तो इन दोनों का एंगल क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और इसी से हम साइज भी कैलकुलेट कर सकते हैं और उसका क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये आगे और क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है 10 अकॉर्डिंग
to this theory, familiar size influences our size perception, which in turns the influences our distance perception. तो ये क्या कह रहा है कि familiar size क्या करेगा, अगर किसी दो ऑब्जेक्ट का familiar size है तो वो क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा डिस्टेंस परसेप्शन में भी। तो हमें क्या लगेगा, अगर दो familiar size के ऑब्जेक्ट हमारे सामने रखे हुए हैं तो हमें ऐसा लगेगा कि उनका जो डिस्टेंस है वो भी दोनों का सिमिलर है। यही थ्योरी इसको एक्सप्लेन करती है, ये इसके अंदर बताया गया है। द नेक्स्ट वन इज थ्योरी ऑफ डायरेक्ट परसेप्शन। अगर आप इसको रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इसमें ज्यादा ऐसा डिटेल में कुछ है नहीं। इसके बाद आता है हमारा थ्योरी ऑफ डायरेक्ट परसेप्शन। ये आता है थ्योरी ऑफ डायरेक्ट परसेप्शन, हम डायरेक्ट परसेप्शन कैसे करते हैं। तो जो साइंटिस्ट था गिब्सन इन 1979 proposed the theory of direct perception. His ideas regarding size perception were summarized by Epstein 1982, and there is no perceptual representation of size correlated with the retinal size of the object. तो ये थ्योरी है डायरेक्ट परसेप्शन की, जो साइंटिस्ट ने दी थी, अलग अलग साइंटिस्ट की अलग अलग थ्योरीज हैं। तो उन्होंने ऐसा बताया था कि जो साइज परसेप्शन होता है हमारा, वो क्या करता है, किसी भी there is no perceptual representation of size correlated with the retinal size of the object. तो ये कह रहा है कि जो हमारे रेटिना में जो साइज बन रहा है ऑब्जेक्ट का, जरूरी नहीं है कि जो ओरिजिनल जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज भी उतना हो। ये इसकी पहली थ्योरी है। और नेक्स्ट वन ये क्या कह रहा है, perceived size and the perceived distance are independent function of information in the stimulus. और जो perceived size है, जो हमें साइज उसका लग दिखाई दे रहा है, जो उसका डिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है, these are independent function of information and stimulation. तो ये क्या है, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं। ये ऐसा साइंटिस्ट बोल रहा है। अभी इसने आगे एग्जांपल इसमें दिया नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको ये लेटर। The correlation between perceived size and perceived distance is attributed to the correlation between the specific variable of the stimulation which governs this percepts in the particular situation. तो ये बस यही बता रहा है, उनका कोरिलेशन जो होता है डिस्टेंस और साइज के, उनका रिलेशन होता है परसीव्ड साइज और परसीव्ड डिस्टेंस में, ये कभी कभी हम आइडिया लगा भी सकते हैं, कभी कभी रिलेट हो भी जाता है और कभी कभी रिलेट नहीं भी होता है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको एक्सप्लेन किया हुआ है पेज नंबर 78 पे। तो ये कुछ चीजें हैं जो इन्होंने आगे अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है, एंड लेटर आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल्स। अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। अभी इसके बाद फिर हमारा आ जाता है एरर्स इन परसेप्शन, कि परसेप्शन में क्या क्या एरर होती है। जैसे अभी हमने मूवमेंट परसेप्शन के बारे में पढ़ा, तो परसेप्शन में एरर कहाँ कहाँ आ सकती है। अब ये बोल रहा है कि परसेप्शन इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ए स्टिमुलस एज इट इज। तो परसेप्शन हमारी क्या धारणा होती है, हमें क्या धारणा दे, हमें धारणा हमारी सही होनी चाहिए, यही हमारी परसेप्शन है। अगर वो सही नहीं होगी, हमारा नजरिया अगर सही नहीं होगा, अगर हम सही से चीजों को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, तो उसमें क्या आ जाएगी, उसमें एरर आ जाएगी। और एरर कितने तरह की होती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एरर क्या हो जाती है, हमारी इल्यूजन हो जाती है। इल्यूजन जैसे हमने बताया कि चीजें दिखाई कुछ और देती हैं और एक्चुअल में कुछ और होती हैं। दैट इज ऑल अबाउट योर इल्यूजन। तो इल्यूजन इज अ फॉल्स परसेप्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल इल्यूजन मतलब ही गलत होता है। इल्यूजन वहीं पे होगा कि वो है ही नहीं। हेयर एन इंडिविजुअल परसीव्स अ स्टिमुलस इनकरेक्टली। फॉर एग्जांपल, इन द डार्क a rope is mistaken as a snake और vice versa। तो क्या एग्जांपल दे रहा है कि जैसे अंधेरे में एक रस्सी जो होती है वो हमें स्नेक की तरह, सांप की तरह दिखाई दे सकती है। तो वो क्या होगा, हमारा इल्यूजन हो गया, क्योंकि असली में तो वो स्नेक है ही नहीं। दैट इज ओनली अ रोप। So that comes under illusion. Again, I will show you one video regarding the illusion and you will better understand the concept. And other one is hallucination. Hallucination word बहुत लोगों ने सुना होगा पहले। Hallucination क्या होता है, hallucination होता है कि कोई चीज है ही नहीं। इल्यूजन में तो क्या होता है, चीज दिखाई तो दे रही है हमें लेकिन वो गलत दिखाई दे रही है। हेलोजिनेशन में क्या होता है, कोई कुछ भी वहां पे एक्चुअल में रियलिटी में कुछ भी नहीं है लेकिन हमें फिर भी चीजें दिखाई दे रही है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मेरे को तो यहाँ पे भूत से डर लग रहा है, मेरे को तो यहाँ पे आदमी खड़ा हुआ दिखा। तो दैट कम्स अंडर हेलोजिनेशन। इल्यूजन नहीं होगा वहां पे, हेलोजिनेशन होगा, क्योंकि इन रियलिटी वहां पे कोई है ही नहीं। तो इसलिए वो आ जाएगा हेलोजिनेशन के अंदर। अगर मैं इसको आगे डीपली अगर आपको पढ़ाऊं, so this phenomenon is known as hallucination. क्या we come across instances where the individual perceives some stimulus even when it is not present. कि हमें कुछ ऐसा अपीयर होता है जो एक्चुअल में वहां पे है ही नहीं। The person may see an object, person etc, or he she may listen to some voice through their आर नो ऑब्जेक्ट्स एंड साउंड इन रियलिटी। मतलब असली में कुछ वहां पे है ही नहीं, फिर भी मुझे कुछ साउंड सुनाई दे रही है, फिर भी मुझे कुछ पर्सन वहां पे खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, और फिर भी, या फिर मुझे कोई ऑब्जेक्ट वहां पे शो हो रहा है लेकिन एक्चुअल में वहां पे कुछ भी नहीं है। तो ये आता है हमारा हेलोजिनेशन के अंदर। तो ये परसेप्शन क्या हो गया, एरर परसेप्शन हो गया, कि मैं ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहा हूँ सही से। तो इल्यूजन में, दोबारा बता देता हूँ, इल्यूजन में हमें चीजें विजुअलाइज होती हैं लेकिन वो गलत विजुअलाइज होती हैं, इसलिए हमारा परसेप्शन गलत हो जाता है। हेलोजिनेशन में चीजें होती ही नहीं है इन रियलिटी, लेकिन फिर भी हमें कुछ कुछ दिखाई देता है। तो ये आ जाता है। इन एडिशन टू दिस एरर्स, ये एक बार देख लो,
Abnormalities is our sense perception may also occur and known as एनेस्थेसिया, नो सेंसेशन। ये कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में बताया गया है, कुछ वर्ड्स हैं जो हमारी क्या कहते हैं, एरर्स को डिफाइन करते हैं, जैसे एबनॉर्मलिटीज को डिफाइन करते हैं। जैसे एनेस्थीसिया में क्या होता है, नो सेंसेशन, हमें कोई सेंस नहीं होती। हाइपरस्थीसिया में क्या होता है, एक्सेसिव सेंसिटिविटी, कि कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव होता है, कि मतलब मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे को टच किया, तो ये क्या एक्सेसिव सेंसिटिविटी होगी, कि मतलब किसी ने टच तो किया ही नहीं लेकिन फिर भी मेरे को लग रहा है किसी ने मेरे को टच किया, तो ये आ जाता है इसके अंडर। इसके बाद आता है पैरेस्थीसिया, डिस्टॉर्टेड और रॉन्गली लोकलाइज्ड सेंसेशन। तो जो सेंसेशन होती है वो रॉन्गली लोकलाइज्ड होती है इसमें। इन दिस केस द टेक्टाइल स्किन सेशन इज रॉन्गली परसीव्ड। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी सेंसेशन होती है, स्किन की जो सेंसेशन होती है वो क्या हो जाती है, उसमें एरर आ जाता है स्किन सेशन में। तो ये इसके अंडर यहाँ पे आता है। इसके बाद हमारा आ जाता है टाइप्स ऑफ इल्यूजन। टाइप्स ऑफ इल्यूजन तो मैंने बताया ही कि चीजें होती तो हैं लेकिन वो गलत हमें अपीयर होती हैं। अब इसका फर्स्ट एग्जांपल आ जाता है मुलर एयर इल्यूजन। इसमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस अपीयर लॉन्गेस्ट। तो आप बताओ कि यहाँ पे ये वाली फिगर ज्यादा बड़ी है या ये वाली फिगर ज्यादा बड़ी है, कि लॉन्गेस्ट कौन सी है, जिसकी लाइंस है अगर उसको मैं कैलकुलेट करूं तो सबसे ज्यादा दोनों में से कौन सा बड़ा होगा। इफ एनीबडी हैव एन आइडिया दे कैन आस्क। कोई भी। हेलो, आवाज आ रही है क्या, नहीं आ रही मेरी किसी के पास। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। आई अच्छा थिंक तुम बी वाला जब, है ना बड़ा। हाँ तो मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, कोई भी बताओ कि लाइन ए बड़ी है लाइन बी बड़ी है इन दोनों में से। लाइन बी बड़ी लग रही है वैसे तो। अच्छा, और एनीवन एल्स। एक्चुअल में क्या है, ये दोनों ही सेम है। इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। दैट इज व्हाई इट कम्स अंडर इल्यूजन। If I will read from this, if your answer is line A, then you are wrong. And if your answer is line B, then again you have given an incorrect answer because both the lines are of equal length. दोनों lines की जो length है वो दोनों की equal है, लेकिन हमें फिर भी appear हुआ ना, तो ये क्या हो गया, illusion के अंदर आया। पता चला कि हम देख रहे हैं चीजों को, हम देख रहे हैं, विजुअलाइज हो रही है, लेकिन हमारा डिसीजन क्या हुआ, हमारा डिसीजन तो गलत हो गया, कि हमें गलत अपीयर हुआ। तो इसलिए ये किसके अंडर आ गया, इल्यूजन के अंडर आ गया। इसी में अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, तो इसमें पोंजो इल्यूशन है। इसमें क्या होता है कि जब भी हमने कल पढ़ा था, मैं एक बार दिखा देता हूँ, वर्ड कहाँ गया वो, लीनियर पर्सपेक्टिव, हमने कल पढ़ा था लीनियर पर्सपेक्टिव। उसमें ये था कि जब कोई दो लाइंस होती हैं और वो बहुत लंबी होती हैं तो हमें वो छोटी अपीयर होती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और इसी के अंदर क्या ये एग्जांपल क्या बता रहे हैं, ये जो येलो लाइन है ना, ये येलो लाइन और ये येलो लाइन, अभी हमें ऐसा लग रहा होगा कि ये बड़ी है और ये छोटी है, जबकि ऐसा नहीं है, दोनों सेम इक्वल लेंथ की जो है लाइन्स है यहाँ पे, आप देख सकते हो। लेकिन हमें ऐसा अपीयर हो रहा है कि ये दोनों, ये बड़ी है ये छोटी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इल्यूजन हो जाएगा। अब नेक्स्ट आ जाता है एबिंगस इल्यूशन। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि इसमें ये पूछ रहा है कि ये वाली येलो डॉट बड़ी है कि ये वाली येलो डॉट बड़ी है। अभी हमें इस फोटो के हिसाब से लग रहा है कि नहीं यार यही वाली बड़ी होगी, जबकि हैं दोनों ये सेम। तो ये भी हमारे एक इल्यूजन के अंदर आ जाता है। आप इसको बस ये नेम को याद कर सकते हो, अगर कोई एग्जाम में आ जाए टाइप्स ऑफ इल्यूजन, अगर एग्जाम में आ जाता है टाइप्स ऑफ इल्यूजन, तो हमें बस इनके नाम पता होने चाहिए कि एक हमारा हमारे पास होता है मुलर वाला इल्यूजन होता है, एक पोंजो इल्यूजन होता है, और एक ये वाला इल्यूजन होता है, और एक नेक्स्ट आ जाता है एमएस रूम इल्यूजन। ठीक है, तो ये बस इसके नाम याद रखना, द मून इल्यूजन, वैसे आपको एग्जाम्पल याद रह जाएगा, मैं बता ही रहा हूँ अभी। और इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा द एमएस रूम इल्यूजन। इसमें क्या होता है, अब तुमने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस में, आई होप, कि एक रूम होता है, जैसे इसको क्या है इस तरीके से बनाते हैं, इसको यहाँ से तो ऊपर कर देते हैं, इसकी हाइट बढ़ा देते हैं, और वहां से इसकी हाइट नीचे कर देते हैं। तो क्या होता है इसमें, जो यहाँ पे जो जो पर्सन खड़ा है ना यहाँ पे, उसकी हाइट हमें इससे ज्यादा लगती है, इससे ज्यादा लगती है हमेशा, लेकिन इन रियलिटी दिस इज नॉट अ ट्रूथ। ठीक है, अगर यही लड़का अगर यहाँ पे जाके खड़ा हो जाएगा, ये लड़की इधर आ जाएगी, तो ये लड़की इस लड़के से लंबी लगेगी। But again, this is not correct. This is our false perception. So this comes under the MS room illusion. ये आपने देखा होगा बहुत ज्यादा फेसबुक वगैरह पे जो आती हैं वीडियोस वगैरह, जो इल्यूजन वीडियोस आती हैं, बहुत सारी आती हैं। अब नेक्स्ट वन है द मून इल्यूजन। मून इल्यूजन में क्या होता है
कि जब मून हमारे एकदम सर के ऊपर होता है ना, तो हमें वो छोटा लगता है। तुमने अभी नोटिस किया होगा, देखो जब सूरज निकलता है या सूरज जब ढलता है तो बहुत बड़ा दिखाई देता है हमें, लेकिन अगर जब बीच में होता है उनको, तो अगर तुम देखोगे ग्लासेस वगैरह से, तो हमें बहुत छोटा दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा रियलिटी में थोड़ा ना है, उसके साइज तो सेम ही है, लेकिन हमें ऐसा अपीयर होता है। ठीक है, ड्यू टू हमारा जो होरिजन है इसकी वजह से, क्योंकि हम फ्लैट सरफेस पे नहीं है, हम भी ऐसे वाले सरफेस पे हैं, लेकिन हमें ऐसा अपीयर होता है कि हम फ्लैट सरफेस पे हैं, जिसकी वजह से हमें उसका जो साइज होता है उसमें डिफरेंट नजर आता है, लेकिन वो ऐसा नहीं होता इन एक्चुअली। तो ये आ जाता है हमारा इल्यूजन में, और हमारा ये चैप्टर हो जाता है खत्म। तो अगर किसी को भी परसेप्शन के रिगार्डिंग यस्टरडे वाली जो क्लास थी, जो आज वाली है, किसी को कुछ पूछना हो तो दे कैन आस्क, अदरवाइज वी विल मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन व्हिच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग, व्हिच इज थिंकिंग एंड लैंग्वेज। तो अगर किसी को पूछना हो तो कुछ पूछ सकता है, वैसे इसमें कुछ था मैं नहीं ये ज्यादा पूछ रहा था बताने के लिए। हिमांशु, ये जो कल हमने पढ़ा था लीनियर पर्सपेक्टिव का, हम्म वो हम्म हम्म। और एक इसमें जो अब वो हैगा, तो वो मतलब को रिलेटेड है ना थोड़े थोड़े? कोरिलेटेड है, सभी कोरिलेटेड है यहाँ पे। कुछ ऐसा कुछ इन्होंने बस थोड़ी थोड़ी डिफरेंट तरीके से चीजों का एक्सप्लेन किया है कि हमारा परसेप्शन कैसे कैसे डिफरेंट हो जाता है, क्या पैटर्न की वजह से डिफरेंट क्यों हो जाता है परसेप्शन में। तो हमने पढ़ लिया था लास्ट वाली यूनिट में ही। तो जो ये हम्म। यूनिट है, यूनिट 4 है, इसमें मेनली एक तो डेप्थ, डिस्टेंस और साइज। ठीक है, ये तीन चीज बताइए कि उसमें हमें कैसे परसेप्शन हमारा बनता है, डेप्थ को लेके कैसे परसेप्शन बनता है, या डिस्टेंस को लेके कैसे परसेप्शन बनता है कि इसका इतना डिस्टेंस होगा, इस ऑब्जेक्ट का इतना डिस्टेंस होगा, वो हम कैसे मतलब ऑब्जर्व करेंगे और कैसे उसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है साइज परसेप्शन, कि हम साइज कैसे डिफाइन करेंगे हम्म। किसी ऑब्जेक्ट का अपनी आईज के द्वारा, हम कैसे कर पाते हैं, हमारी जो आईज की कैपेबिलिटी है, हमारी जो रेटिना है, वो कैसे इमेजेस को फॉर्म करती है। उसके बाद वो जो फॉर्मूला बताया था मैंने, इसमें एक आया था बीच में कि क्या होता है हमारा दिखा देता हूँ मैं आपको इसमें। हाँ, ये साइज परसेप्शन है, साइज डिस्टेंस इनवेरियंस हाइपोथेसिस। तो इसमें भी यही एक थ्योरी है जिसमें हम क्या करते हैं, परसीव्ड साइज कैलकुलेट कर लेते हैं उसका परसीव्ड डिस्टेंस से और हमारे विजुअल एंगल से, जो हमारी आइज के बीच का एंगल बनता है। और ये बहुत जगह साइंटिफिकली भी यूज होती है, जब हम सपोज कि एक पोजीशन से मैं सन को देख रहा हूँ और दूसरी पोजीशन से अर्थ पे दूसरी पोजीशन से सन को देख रहा हूँ, और ऐसे ही इनकी कैलकुलेट की गई थी। अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं तो जैसे मून का डिस्टेंस है या फिर सन का डिस्टेंस है, तो बहुत पहले जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते थे उनमें वैसे ही इन्होंने रफ आइडिया निकाला था कि सपोज कि एक बंदा, ये हमारी अर्थ है, अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, सपोज दिस इज आवर अर्थ एंड दिस इज पॉइंट ए, और ये है पॉइंट बी, ये पॉइंट बी है, और ये सपोज कि हमारा मून है। ठीक है, तो हम यहाँ से पहले देखेंगे इसको, और फिर यहाँ से हम देखेंगे इसको, और फिर ये जो एंगल बनेगा ना, इस एंगल से हेल्प से और ये डिस्टेंस की हेल्प से हम इसका साइज निकालेंगे, या फिर इसके साइज के हिसाब से ये डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो ऐसे थ्योरीज पहले यूज हो चुकी हैं बहुत पहले। अभी तो बहुत ज्यादा न्यू डेवलप्ड वो आ गए हैं, हमारे पास साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, लेकिन पहले ये सब हाँ यूज जी। होता था। तो ये थ्योरी है ऐसे डिस्टेंस कैलकुलेट करने की, परसीव्ड डिस्टेंस और ठीक है। परसीव्ड साइज। मतलब जरूरी नहीं है कि वो एकदम पूरा सही हो, वो अपीयर हो सकता है, हमें क्या पता वो ऐसा ना हो। तो ये हमारे कुछ कुछ एरर्स भी बताए गए हैं इसमें। इल्यूजन तो पूरा एरर ही है कि हमें कुछ और दिखाई देता है लेकिन एक्चुअल में कुछ और होता है। तो ये सब इल्यूजन का है। मैं एक बार छोटी सी एक वीडियो दिखा देता हूँ इल्यूजन को लेके, उसके बाद हम शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर जिसमें आएगा मजा। इस फोटो में अगर मैं बताऊं तो ये देखो, ये इसी फोटो को उल्टा कर दिया है यहाँ पे। अभी हम यहाँ पे अलग ही अपीयर हो रहा है, यहाँ पे एक अलग फेस दिखाई दे रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। तो दिस कम्स अंडर हम्म। इल्यूशन अगेन।
तो यही सब था, बाकी इसमें कुछ है नहीं। इल्यूजन मुझे लग रहा है समझ में आ ही गया होगा, किसी को ऐसा कुछ डिफिकल्टी इसमें थी नहीं। क्लियर है। अगर किसी को फिर भी कुछ डाउट हो तो दे कैन आस्क, आई विल आंसर देम फर्स्ट एंड विल मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन।